हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स से। सो एज पर AS 21 होल्डिंग कंपनी हैज टू प्रिपेयर consolidated financial statements. So we are starting with what is meaning of holding company, what are financial statements and how they are consolidated. First let us see what is holding company. So holding company is that company which has control over other company. So holding company is that company which has control over other company. So let us see how control is obtained by one company over other company. So control means one company has more than 50% of paid up equity capital of other company. So it means our condition is control means one company it has more than 50% of paid up equity capital of other company. For example, A Limited, so it has 60% equity of a company B. And how A can get more than 50%? It means A has purchased equity shares of B company and these shares are more than 50%. Maybe 51%, 60, 70, 80. Then we say that A has control over other company which is B. So in this case, so since A has control over B, so A is called holding company. And holding company is also called as parent company. And this other company on which one company had control, so this is called subsidiary company. So therefore, for simplification purpose, we can denote a holding company by H. It means H has so 60% equity capital of other company, which is called a subsidiary company. So it may be denoted by S. So this is for a simplification purpose. So here H is a holding company which has control over a subsidiary which is a S company. So in this case, our requirement is when one company has control over other, it means by more than 50% equity, then as per AS 21, so there is one accounting standard which is number 21. So this holding company so has to prepare consolidated financial statements. So what is meant by consolidated financial statements? It means a holding company has to prepare a combined balance sheet, combined profit and loss account, combined cash flow statement of itself with a subsidiary company. So it means consolidated financial statements. In short, they are called as a CFS. So it means holding company actually has to prepare. So combined balance sheet. तो आपको बनानी है combined नंबर 1 बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस। इट मीन्स इसके लिए आपको दोनों की जो बैलेंस शीट आपको दी होंगी होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी उनको आपने करना है कंबाइन। तो इसको हम कहते हैं दिस इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो दिस इज आल्सो कहा जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और शॉर्ट में आप कह सकते हैं CBS। सिमिलरली होल्डिंग कंपनी हैज टू प्रिपेयर कंबाइंड P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of holding and subsidiary. This is combined income statement. And then holding company also has to prepare a combined cash flow statement. So this is also of H and S. ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं combined. इट मीन्स होल्डिंग और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होल्डिंग कंपनी की एज पर AS 21। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ यू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड दिस इज ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो वी कैन से ऑफ H एंड S। तो आपने लिखा जैसे हमारी मेन रिक्वायरमेंट है व्हेन H हैज कंट्रोल ओवर अदर कंपनी इट बिकम्स होल्डिंग कंपनी। इसमें देखते हैं जो कंट्रोल है उसका मीनिंग प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम कंट्रोल का मीनिंग ले रहे हैं वन कंपनी
It means a holding company, it has more than 50% of paid up equity capital. But there are some other concepts also control when a company has more than 50% control over directors of other company, or when one company has more than 50% of voting right of other company, then also we say that it has control. But from practical point of view, we consider 50% of paid up equity capital. तो देखिए अब आपने जब प्रिपरेशन करनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, तो व्हाट आर अवर स्टेप्स इन दिस केस। सो फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज करंट ईयर, और उस साल में या उससे पहले किस डेट को एच ने शेयर एक्वायर किए थे सब्सिडरी कंपनी के। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई टू करंट ईयर। करंट ईयर मीन्स जिस ईयर में आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो इट मीन्स करंट ईयर इज दैट वन फॉर विच कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट CBS इज टू बी प्रिपेयर्ड। फिर आपको मेंशन किया होगा एच ने किस डेट को सब्सिडरी कंपनी के शेयर से एक्वायर किए हैं। तो जैसे कहा जाएगा आइडेंटिफाई, तो जिसे कहा गया डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। तो किस डेट को एक कंपनी ने कंट्रोल एक्वायर किया है दूसरी कंपनी में, उसको हम कहते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी बाय एच इन एस। तो शॉर्ट पर्पज सिंप्लीफिकेशन के लिए हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, एच कहेंगे एस, एच इज होल्डिंग कंपनी, एस की सब्सिडरी कंपनी। तो डेट ऑफ एक्विजिशन आइडेंटिफाई हो जाएगी। फिर आपको देखना है एच के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं सब्सिडरी कंपनी के। इट मीन्स गेट so percentage of shares which are held by H, which are held by H in subsidiary company। अब सपोज कर लीजिए H के पास हैं 80% शेयर्स, so we are assuming that H has 80% shares। किसी का जो H शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी 80%, तो किसी मोर देन 50% तो उसको हम ये भी कहते हैं किसी की मेजोरिटी इंटरेस्ट, किसी का जो मेजोरिटी। It means remaining रह गए अब आपके 20% shares which are held by outsiders। Then you can also determine that percentage of shares of a subsidiary company which are held by outsiders। तो आउटसाइडर मीन्स अदर शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट होल्डिंग कंपनी। 80% शेयर को देखो होल्डिंग कंपनी के पास हैं, इट मीन्स जो रिमेनिंग रह गए 20% वो किसी और पर्सन के पास हैं, उनको हम कहते हैं आउटसाइडर्स। तो किसी का जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो इन दिस केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 20%। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, करंट ईयर, डेट ऑफ एक्विजिशन और एच के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करंट ईयर इज 2022 टू 23। तो आप देखेंगे ये ईयर स्टार्ट हो रहा है आपका एज ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। फिर आपको मेंशन किया होगा किस डेट को एच ने शेयर एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी के। सपोज चलो आपने एक्वायर किए हैं 1 अप्रैल को ही, सो एच हैज एक्वायर्ड सो 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज ऑन दिस डेट। ये आपकी बन जाएगी डेट ऑफ एक्विजिशन। So when H company will purchase shares of subsidiary company, so this is called investments of H company। कि जो भी एच ने शेयर परचेज किए हैं सब्सिडरी में वो एच की इन्वेस्टमेंट बन जाएंगी। तो किसी का जो इन्वेस्टमेंट्स आप ब्रैकेट में ये भी मेंशन कर सकते हैं इन शेयर्स ऑफ एस कंपनी एंड किसी इन्वेस्टमेंट ऑफ एच कंपनी। इट मीन्स ये आपको मिलेगी एच की बैलेंस शीट में ऑन एसेट साइड। तो सो इट विल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ एच सो एंड एज नॉन करंट एसेट, और इस नाम से आपको मिल जाएंगी इन्वेस्टमेंट के नाम से एज नॉन करंट एसेट। तो अब आपने देखा कि कौन सी डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो इस डेट के बेस पे आपने करंट ईयर को ना डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। एक में अप टू 1 अप्रैल 2022 ये जो टाइम पीरियड है किसी का प्री एक्विजिशन पीरियड। सो इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू गेट व्हाट इज प्री एक्विजिशन पीरियड एंड सेकंड यू कैन गेट व्हाट इज पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो इस एग्जांपल में अप टू 1 अप्रैल 2022 उससे पहले का जितना भी पीरियड है वो आपका प्री एक्विजिशन बन जाएगा। लेकिन जब सब्सिडरी कंपनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम से लेके अप टू 1 अप्रैल 2022 ये है हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड,
और उसके बाद का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 तक ये हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड माना जाएगा। तो इसके बेस पर आपको कैलकुलेट करनी होती है अब सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी कितनी है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन विच इज कॉल्ड प्री एक्विजिशन, और उसके बाद कितनी इक्विटी अर्न की है सब्सिडरी कंपनी ने। अब सपोज कर लीजिए आपको ये मेंशन किया है कि इतने शेयर एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी के ड्यूरिंग करंट ईयर। फॉर एग्जांपल लेकिन हम ये डाटा लेते हैं, तो करंट ईयर कैसे हम ले रहे हैं, करंट ईयर 2022 टू 23 ईयर स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2022 एंड इट इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। अब आपको मेंशन किया है कि इतने शेयर्स एक्वायर किए हैं एज ऑन 1 जुलाई 2022 ऑन दिस डेट एच एक्वायर्ड से 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। उस केस में आप देखेंगे जो करंट ईयर है उसमें भी आपका जो पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक ये आपका बन जाएगा प्री एक्विजिशन पीरियड। This is pre-acquisition period in current year also. So for how much time period? In this example, it is April, May and June. It is 3 months. और जो रिमेनिंग पीरियड है आफ्टर 1 जुलाई अप टू 31 मार्च दिस इज कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो इन दिस एग्जांपल इट इज 9 मंथ्स। तो अब आपका जो सेकंड स्टेप है देखिए कि आपने ये कैलकुलेट करना है कि जो आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है मे बी 1 अप्रैल है और इट इज 1 जुलाई, तो इस डेट को कितनी इक्विटी थी सब्सिडरी कंपनी की एंड आफ्टर एक्विजिशन हाउ मच इज इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाते हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। तो इट मीन्स स्टेप नंबर सेकंड वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो एक आपको स्टेटमेंट बनानी है जिसमें हम शो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इक्विटी की देखो डेफिनेशन में क्या क्या आइटम्स आएंगे आपके। देखिए अब लाइबिलिटी साइड से चलते हैं बैलेंस शीट पे, तो उसमें इक्विटी में हम लिखे हैं वर्किंग शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए आपको कोई फिक्टिशियस एसेट्स दिए हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू। अब देखिए आप एसेट्स साइड से स्टार्ट करते हैं देन वी टेक नॉन करंट एसेट्स जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस जितनी भी अदर लाइबिलिटीज हैं विच इज कॉल्ड लोन्स और डेट। तो बैलेंस भी आपके इक्विटी रह जाएगी। तो इसका परफॉर्मा देखते हैं, तो इसका बेसिक पर्पस है वो भी देखते हैं। तो लेट अस सी परफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसमें हम इक्विटी कैलकुलेट करेंगे नंबर 1 एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन और सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर एक्विजिशन। तो फर्स्ट लेट अस राइट इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज ऑन एक्विजिशन डेट। Then we will write equity of a subsidiary and this is after acquisition। तो देखते हैं एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन उस इक्विटी में हम दो चीज़ें लेते हैं। नंबर 1 है ये शेयर कैपिटल और उस टाइम जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है और उनको हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। इसमें जिस डेट को एच कंपनी शेयर एक्वायर कर रही है सब्सिडरी के उस टाइम जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस होगा ऑल दीज आर कैपिटल प्रॉफिट्स। तो दीज आर रिजर्व एंड सरप्लस। तो इट मीन्स अब उस डेट के बाद जो भी प्रॉफिट अर्न किया है सब्सिडरी ने वो इक्विटी बन जाएगी और उसका नाम है इक्विटी आफ्टर एक्विजिशन और इसको हम कहते हैं जैसे जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का डिफरेंस है कि जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में होल्डिंग कंपनी को शेयर मिलेगा वो उसकी इनकम मानी जाएगी, वो उसके P&L में ऐड हो जाएगी। और जो कैपिटल प्रॉफिट में आपको शेयर मिलेगा होल्डिंग कंपनी को वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, उसको हम डायरेक्ट उसकी कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। तो इट मीन्स अब आपने ये टेबल ड्रॉ किया है, अब इसमें आप शो कीजिए कि जो डेट ऑफ एक्विजिशन है तो सबसे पहले देखिए उस डेट को कितना शेयर कैपिटल का बैलेंस है उसको मेंशन कीजिए आप शेयर कैपिटल में, उसको शेयर कैपिटल के आपको कॉलम में मेंशन कर दीजिए। फिर आप देखिए उस डेट को अब आपके पास जैसे करंट ईयर है 1 अप्रैल को कुछ बैलेंसिंग हमें किए होंगे बाकी रिजर्व्स इनका बिगिनिंग ऑफ ईयर तो वो भी आप कैपिटल प्रॉफिट में शो कीजिए। फिर आता है ऐसे P&L का बैलेंस होगा सब्सिडरी की बुक्स में रिजर्व्स एंड P&L ये हम सारे ले रहे हैं। जैसे ये आपका करंट ईयर है सो ऑल दीज आर ओपनिंग बैलेंसेज, ये आपके हैं ओपनिंग बैलेंसेज।
उसमें शेयर कैपिटल मिलेगा, रिजर्व्स मिलेंगे, पी&एल का बैलेंस, तो जितने भी ओपनिंग बैलेंस हैं, रिजर्व्स हैं, ये सारे आपके कैपिटल प्रॉफिट्स बन जाएंगे। अब देखिए आपकी एक्विजिशन डेट 1 जुलाई को हो रही है, तो उस केस में जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा आपका इस साल का, उसको आप टाइम रेशो में डिवाइड कीजिए, 3 मंथ्स और 9 मंथ्स की, मीन्स रेशो ऑफ प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। So can you write your current year profit? CY करंट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि आपका डिवाइड हो जाएगा टाइम रेशो में। इट मीन्स 3 मंथ्स का आप लीजिए कैपिटल प्रॉफिट और 9 मंथ्स का आ जाएगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, बाकी टोटल शेयर कैपिटल, टोटल कैपिटल प्रॉफिट्स, टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब तीनों चीज़ों को अब हम डिवाइड करेंगे, अपोर्शन करेंगे इन बिटवीन। इसमें से आप देखिए इसमें एक्स का कितना शेयर है, हमारे एग्जाम्पल में था 80%। बैलेंस जो रहेगा वो रहेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर, जिसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं हम, जिसे कि 20%। इट मीन्स हर आइटम को आपने डिवाइड करना है 80% और 20% में। इससे देखोगे आप जो एक्स्ट्रा शेयर आ रहा है इन इक्विटी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ये बन जाएगा, इसको टोटल कर लीजिए, जिसे ये एक्ट शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर एक्स्ट्रा शेयर आ गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में, ये उसकी इनकम मानी जाएगी, और बाकी बचा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो जब आप इन तीनों को टोटल करेंगे ये आपका बन जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है जिसे इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी विच इज हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। अब इसमें देखिए आपको कैलकुलेट करना था करंट ईयर प्रॉफिट, तो कई बार ये मिसिंग होता है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग पी&एल अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो लेट्स से नेक्स्ट स्टेप इज नंबर 3, तो नेक्स्ट पे लेके से स्टेप नंबर 3। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी विच इज एस कंपनी। तो कई बार ऐसे मिसिंग होता है या आपको कई बार मेंशन किया होता है क्वेश्चन में, लेकिन मिसिंग है तो आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड दिस इज फॉर करंट ईयर, जो भी आपको मेंशन किया है करंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल तो आप देखेंगे ईयर के बिगनिंग में कितना बैलेंस है पी&एल में, वो आपको मेंशन किया है, सो यू कैन शो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, जिसे जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी&एल। तो कई बार मेंशन किया होता है कुछ आपने इस प्रॉफिट में से इस साल ट्रांसफ़र किया रिजर्व में, तो उसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं टू रिजर्व, जिसे ये ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो इसके लिए आप रिजर्व का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, सब्सिडरी का ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, तो डिफरेंस जो है जिसे ट्रांसफ़र टू रिजर्व। फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है पी&एल का टू बैलेंस शीट, जिसे ये क्लोजिंग बैलेंस, इसमें जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट मेड बाय सब्सिडरी कंपनी ड्यूरिंग करंट ईयर, तो दिस इज कॉल्ड बाय प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। तो इस प्रॉफिट को, ये जो करंट ईयर प्रॉफिट है, इसको आपने टाइम रेशो में डिवाइड करना है। बस यदि आपकी एक्विजिशन साल के बिगनिंग में हो रही है, फिर ये सारा का सारा प्रॉफिट आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का माना जाएगा। तो अब देखते हैं आपका जो स्टेप नंबर 4 है, आपने जो कैलकुलेट किया, एच ने शेयर एक्वायर किए सब्सिडरी की, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की। अब एच का कितना शेयर है उस इक्विटी में वो आपने कैलकुलेट किया है। अब इसको कंपेयर करेंगे, इसमें जो डिफरेंस आएगा उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो देखिए स्टेप नंबर 4, वी हैव टू डिटरमिन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मीन्स बेसिक पर्पज ये है, तो एस की बैलेंस शीट के बेस पर एस का शेयर बन रहा है 80% में, जिस प्लस जिस शेयर कैपिटल प्लस जो कैपिटल प्रॉफिट में शेयर था, पर उसके बदले में जब आपने शेयर परचेज किए हैं मार्केट से, वो आपने हाई प्राइस से परचेज किए हैं या लो प्राइस पे, तो जो डिफरेंस है उसको हमने नाम दे दिया है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो देखिए अपनी हाई प्राइस से परचेज किए हैं तो एक तरीके से वो हमारा लॉस है, तो उसको हम कहते हैं गेटिंग ओवर गुडविल। तो आपने पहले जो कैलकुलेट करना है, बाकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपको मिल जाएगी एच की बैलेंस शीट से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस कंपनी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच। तो एच ने जो इन्वेस्टमेंट की है इन शेयर्स ऑफ एस कंपनी, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो ये आपको मिलेगी एच की बैलेंस शीट से, उसको चेक कीजिए, इसको कंपेयर कीजिएगा आप। बचेगी एच शेयर,
अब एच का कितना शेयर है इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एंड दिस इज एज ऑन एक्विजिशन डेट। इसमें दो चीज़ें कंसीडर करेंगे, एक्स्ट्रा शेयर है शेयर कैपिटल में और कैपिटल प्रॉफिट्स में। इट मीन्स यू हैव टू टेक शेयर कैपिटल एंड शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स। इसका कर लीजिए टोटल। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए आप, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को एच का जो शेयर है इक्विटी में, तो डिफरेंस जो है वो आपका आएगा गुडविल, या हम कहते हैं यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका नाम है कैपिटल रिजर्व। तो वो फर्स्ट केस में आ रहा है आपका गुडविल। गुडविल अपीयर होती है जब आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होगी एच का जो इतना शेयर है इक्विटी में, तो इट मीन्स आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना है, माइनस वट इज एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और ये हम दे रहे हैं एज ऑन एक्विजिशन डेट। तो यदि कॉस्ट आपकी ज़्यादा है तो वो गुडविल मानी जाएगी, बट इफ़ कॉस्ट लेस देन इट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो उसको हम गेन मान के और उस गेन को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। इट मीन्स आपका फार्मूला बन जाएगा कैपिटल रिजर्व का, इज इक्वल टू एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी cost of investment of H company in a subsidiary company. So if H share in equity is more than cost of investment, this is capital reserve. नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप नंबर 5। अब आपको कैलकुलेट करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की टोटल कितनी वैल्यू है। स्टेप नंबर 5, सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कोई डेफिनेशन है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मीन्स दिस इज इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी विच इज हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं वही माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन एक्विजिशन डेट, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में शो कर सकते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मीन्स MI। तो लेके से माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन एक्विजिशन डेट, इसका को फार्मूला बन जाएगा वट इज शेयर कैपिटल विच इज हेल्ड बाय आउटसाइडर्स एंड वट इज देयर शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट्स में कितना शेयर है। सो दिस विल बी अवर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन एक्विजिशन डेट, इनका टोटल कीजिए आप। अब इसमें आप ऐड कर लीजिए जो आपको शेयर मिल रहा है इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से विच इज कहा कि रेवेन्यू प्रॉफिट से। इट मीन्स प्लस वी हैव टू ऐड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ माइनॉरिटी। सो दिस टोटल इज अवर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन क्लोजिंग डेट विच इज आल्सो कहा कि डेट ऑफ कंसोलिडेशन। देन वी गेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट सो एज ऑन क्लोजिंग डेट, तो किसी की डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये आपकी कंसोलिडेशन डेट की टाइम आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आता है आपका स्टेप नंबर 6। अब आप देखेंगे एच को भी शेयर मिल रहा है इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स में, वो अपने एच के P&L में ऐड कर देना है, तो उससे आपको मिलेगा कंबाइंड P&L ऑफ एच एंड सब्सिडरी। तो दिस इज स्टेप नंबर 6। नेक्स्ट वी हैव स्टेप नंबर 6। अब आपको कैलकुलेट करना है बल्कि टोटल और कंबाइंड P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी, जैसे उसका नाम है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। उसके लिए आपको चेक करना है बल्कि ये एच का जो कितना बैलेंस है, एच ओन बैलेंस इन P&L, ये आपको एच की बैलेंस शीट से मिलेगा। एच की बैलेंस शीट आपको दी होगी, उसमें आप ऐड कर लीजिए। अब जो एच से आपको एच का जो शेयर है इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, so we have to add share in revenue profits of a subsidiary company. So this total will become our consolidated P&L. This is consolidated P&L of a holding company and this is add on date of consolidation. ये consolidation date को आपको बैलेंस आ जाएगा। अब आपने फाइनली प्रिपेयर करनी है कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, दैट इज स्टेप नंबर 7। So finally we have to prepare consolidated balance sheet. This is of holding company and this subsidiary company. उसके लिए देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं आपको, हाउ टू प्रिपेयर दिस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और इसका क्या परफॉर्मा है। तो वी आर प्रिपेयरिंग नाउ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कि जब आप बैलेंस शीट को कंबाइन कर रहे हैं तो आप देखेंगे एच की बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स अपीयर हो रही हैं,
It means first of all investments of H so in shares of S कंपनी, ये आपको मिलेंगे फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। सेकंड आपको मिलेंगे सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इक्विटी में आ जाएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सभी आइटम्स हैं, जितने भी रिजर्व हैं, जितना भी पी&एल का बैलेंस है, तो इनको हमने ना कंपेयर कर लिया है। देखो हमने क्या किया, तो टोटल इक्विटी थी सब्सिडरी की, उसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में। एक्स्ट्रा कितना शेयर का और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। एक्स्ट्रा शेयर कंपेयर किया इन्वेस्टमेंट से, उसका कितना ले लिया गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। और जो आउटसाइडर की इक्विटी है उसको हम शो कर रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। लेकिन अब ये जो दो आइटम्स हैं आपकी, दे विल नॉट अपीयर, so these items will not appear in consolidated balance sheet. These will not appear in consolidated balance sheet of holding and subsidiary. तो जब आप होल्डिंग सब्सिडरी की बैलेंस शीट को कंबाइन करेंगे तो इन दो आइटम्स को एलिमिनेट करना है। इट मीन्स सो दीज आइटम्स सो आर टू बी एलिमिनेटेड। तो इन आइटम्स को आपने एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस था वो हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है, तो इसका नाम चेंज कर दिया है। कुछ बन गया गुडविल कैपिटल, कुछ बन गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और जो एक्स्ट्रा शेयर का रेवेन्यू प्रॉफिट सब्सिडरी में वो उसके पी&एल में ऐड हो जाएगा। तो आप देखते हैं परफॉर्मा क्या है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का। तो लेट्स सी परफॉर्मा ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस एंड किसी प्रिपेयर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, इट मींस इन बुक्स ऑफ एच कंपनी। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, तो उसके बेस पे शेड्यूल 3 के बेस पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वर्टिकल बैलेंस शीट बन रही है आपकी। तो फर्स्ट आइटम है यहाँ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें सबसे फर्स्ट आइटम आती है आपकी शेयर होल्डर फंड्स, और बिकी आंसू आ जाएगी इक्विटी। इसमें आप शो करेंगे शेयर कैपिटल, सो दिस इज ऑफ एक्ट कंपनी ओनली। अमाउंट्स आ जाएंगे आपके रुपीज में। तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो आपने शो करने हैं, दिस इज आल्सो ऑफ एक्ट कंपनी। फिर आपका आ जाएगा कंसोलिडेटेड पी&एल, तो दिस इज आल्सो ऑफ एक्ट कंपनी। फिर आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया था इन्वेस्टमेंट में और एक्स्ट्रा जो शेयर का इक्विटी ऑफ सब्सिडरी विच वाज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व आ रहा है, इट विल आल्सो अपीयर इन शेयर होल्डर फंड्स इफ इट इज कैपिटल रिजर्व। तो किसी टोटल इक्विटी और टोटल शेयर होल्डर फंड्स। फिर आपने कैलकुलेट किया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसको हम सेपरेट शो करेंगे फ्रॉम शेयर होल्डर फंड्स। तो सेकंड आप हेडिंग बना लीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको आपने सेपरेट शो कर लेना है। फिर आके जो अगर लाइबिलिटीज़ रह गई हैं, लोन्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो आप शो कर सकते हैं। इट मीन्स थर्ड आइटम में भी अगर लोन्स, जिसको हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़, एंड फोर्थ आइटम में भी करंट लाइबिलिटी। तो ये आपने शो करनी है दोनों की, एच की कितनी है लोन्स, सब्सिडरी के कितने हैं, तो टोटल। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज़ एच की कितनी है और सब्सिडरी की, उनका कर लीजिए टोटल। तो दिस विल बी टोटल लाइबिलिटीज़। फिर आपको शो करनी है एसेट साइड, किसी अगर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज टोटल, तो आप मेंशन कर सकते हैं टोटल आल्सो। देन वी हैव टू शो एसेट्स, नेक्स्ट वी शो एसेट्स। इसमें देखो पहली एसेट्स है आपकी नॉन करंट एसेट्स। सो फर्स्ट वी हैव नॉन करंट एसेट्स, ये आपने दोनों ही शो करनी है, होल्डिंग सब्सिडरी। तो लाइक फर्स्ट है हमारी टेंजिबल आइटम्स, विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एच कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। फिर आती है आपकी जैसे इनटेंजिबल अगर एसेट्स, मीन्स अब आपने एक गुडविल कैलकुलेट की है, वो भी आपकी अपीयर हो जाएगी। कोई आपकी अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं, दैट विल आल्सो अपीयर ऑफ एच एंड एस। इट मीन एसेट्स आपने दोनों कंपनी से कंबाइन कर देनी है, एच की भी और सब्सिडरी की भी, जिस विल बिकम टोटल नॉन करंट एसेट्स। देन वी हैव करंट एसेट्स, जिसमें आपके स्टॉक हैं, डेटर्स हैं, कैश है, बैलेंसिंग है। तो वी हैव टू शो स्टॉक, डेटर्स, कैश और बैंक, ये भी आपने शो करने हैं दोनों के, एच एंड सब्सिडरी। देन टोटल इज ऑफ द गुड। So this will be our total assets. So this is our consolidated बैलेंस शीट। तो मेन आइटम आपने ये थी, एक गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपको यहाँ पर शो करना है। कंसोलिडेटेड पी&एल है, गुडविल इज दिस वन,
और एक नई आइटम की हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट की है, इसको हम सेपरेटली शो करके हैं एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर पॉइंट से, तो इसको आप शो कर लीजिए सेपरेट। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फुल, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। So let us see one example to clear the concepts of holding company. अब देखिए इस एग्जाम्पल में आपको डाटा मेंशन किया है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 12,000 शेयर्स ऑफ एस कंपनी ₹1,70,000 on 1st April 2022. So on which date S P&L account showed a credit balance of ₹45,000. And then it is given that on 31st March 2023 the balance sheet of the two companies are given. तो इसमें आपको दोनों कंपनी से बैलेंस शीट दी है। तो सबसे पहले आप देखिए आइडेंटिफाई कीजिए बताइए करंट ईयर। तो करंट ईयर है आपका 2022 टू 23। फिर आपको मेंशन किया है एक्ने शेयर एक्वायर किए हैं 12,000 शेयर्स ऑन 1st April 2022। तो इट मीन्स वट इज डेट ऑफ एक्विजिशन। तो आपका ईयर स्टार्ट कर रहा है 1st April 2022। तो इस डेट को एक्ने शेयर एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी के, तो दी जा रहे 12,000 शेयर्स। फिर आपने कैलकुलेट करना है कितने परसेंट शेयर आपने एक्वायर किए हैं। तो आप देखिए सब्सिडरी की बैलेंस शीट में आपको डाटा मेंशन किया है। आपकी ये टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल भी है सब्सिडरी की, ये है ₹2 लाख एंड शेयर्स आवर ऑफ ₹10 ईच। इतने टोटल शेयर्स हैं आपके 20,000। तो इससे आपका आ जाएगा एक्स्ट्रा कितना इंटरेस्ट है एच शेयर। एच ने एक्वायर किए हैं 12,000 शेयर आउट ऑफ 20,000 शेयर्स। इट मीन्स एच शेयर इज 60%। तो बैलेंस आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट माना जाएगा विच इज हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 40%। फिर आपका करंट ईयर आपका क्लोज हो रहा है 31st मार्च 2023। तो इट मीन्स आपने शेयर से एक्वायर कर लिए ईयर के बिगनिंग में ही। तो इसमें इस साल का जो प्रॉफिट है ये सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा। अब आपको एक बैलेंस दिया है P&L का। तो एस का बैलेंस है एज ऑन दिस डेट, P&L बैलेंस ऑफ एस कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी। तो दिस इज गिवन टू बी 45,000। अब आप देखेंगे एस की बैलेंस शीट में आपको दिया है शेयर कैपिटल है ₹10 ईच। एक जनरल रिजर्व दिया है एज ऑन 31st मार्च 2022। इसमें जनरल रिजर्व का बैलेंस इसी डेट को दिया है 31st मार्च 2022। तो ये आपका जो है प्री एक्विजिशन बन जाएगा। P&L का बैलेंस आ गया है। फिर आपको दिया है P&L में टोटल बैलेंस है 65,000। सो P&L बैलेंस जिसे ये फॉर द ईयर एंडेड जिसे ये 65,000। इतनी जितना डिफरेंस आ रहा है 20,000 ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट माना जाएगा। बस सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, तो आपको P&L बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको दिए हैं संग्रही क्रेडिटर्स हैं दोनों कंपनीज के बैलेंस शीट में। नॉन करंट एसेट्स में गुडविल है, मशीनरी है, फर्नीचर है। शेयर्स इन एस लिमिटेड, एक्ने के शेयर परचेज किए हैं एस के, उसकी कॉस्ट की है 1,70,000। और स्टॉक है क्या है कैश है, आपको प्रिपेयर करनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च 2023। तो देखो पहला स्टेप क्या था आपका, स्टेप नंबर 1 कि आपने आइडेंटिफाई किया करंट ईयर, डेट ऑफ एक्विजिशन और एस के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं। स्टेप नंबर 2 अब आपको प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पर उसके लिए चाहिए करंट ईयर प्रॉफिट आल्सो। तो आप स्टेप 2 में कैलकुलेट कर सकते हैं बताइए करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी एस कंपनी। तो दिस इज कमिंग 65 माइनस 45। तो P&L आप क्या ना भी बनाइए, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही है इस क्वेश्चन में 20,000 की। फिर आपको प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो नेक्स्ट लेट अस शो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये आपका एक मेन वर्किंग नोट है, तो उसके बिना क्वेश्चन नहीं चलेगा।
इसको मैंने जो कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है, मैं स्टेटमेंट के बेस पे शो कर रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी। तो पहले आप मेंशन कीजिए इक्विटी, ये है ऐसी कंपनी की एज ऑन एक्विजिशन डेट। इस केस में एक्विजिशन डेट है आपकी 1 अप्रैल 2020 को। उस टाइम इक्विटी में दो चीज़ें आएंगी, एक तो शेयर कैपिटल आएगा आपका, और उसके जितने भी रिजर्व हैं प्रॉफिट्स हैं देयर का आगे कैपिटल प्रॉफिट्स। फिर आपको कैलकुलेट करनी है इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी आफ्टर एक्विजिशन, इक्विटी आफ्टर एक्विजिशन। तो इसमें हम लिखें जो भी प्रॉफिट अर्न किया है सब्सिडरी ने आफ्टर एक्विजिशन, जिसे कहा गया रेवेन्यू प्रॉफिट। अमाउंट्स आपको जो चल रहे हैं रुपीज में। तो सबसे पहले आपको मेंशन करने होते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो एक्विजिशन डेट है साल के बिगिनिंग में, और ओपनिंग बैलेंस उस टाइम जितने भी होंगे वो सारे प्री एक्विजिशन बन जाएंगे। तो आपको जो दिया है शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो किसी की रुपीज 2 लाख। फिर आपको मेंशन किया है उस टाइम जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये हम सिर्फ सब्सिडरी का ले रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम। तो जनरल रिजर्व गिवन 55,000, इसको कैपिटल प्रॉफिट में आप शो कीजिए। फिर आपके पास है P&L बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। तो एज एन एक्विजिशन डेट जिसे गिवन 45,000। फिर का आपका करंट के प्रॉफिट, सारा का सारा प्रॉफिट आपका पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा। देन वी हैव करंट ईयर प्रॉफिट, जिसे कि 20,000। तो ये आपकी मेन आइटम्स लिए हैं आपको, तो इसका टोटल कीजिए आप, जिसे शेयर कैपिटल है 2 लाख, कैपिटल प्रॉफिट्स 1 लाख, एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स 20,000। तो इसमें से आपको कैलकुलेट करना है वही ये एच शेयर। एच शेयर है आपका 60% एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट विच इज 40%। So you can see H share is 60% of rupees 2 lakh, this is 120, 40% 80,000, 60% of 1 lakh 60,000, 40% is 40,000, 60% of 20, this is 12,000, and 8,000, 40%. It means what is the H share in equity of subsidiary company as on date of acquisition, जिसे शेयर कैपिटल प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। 12,000 है उसका शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट में, इसको मैं सर्कल से शो कर रहा हूँ टू डिफरेंशिएट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज दिस वन, टोटल माइनॉरिटी का जो शेयर है शेयर कैपिटल में एंड इन कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स, जिसे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये तीन चीज़ें जो हमने एक ही वर्किंग नोट में जो है डिस्क्लोज कर दी हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए, नेक्स्ट स्टेप है हमारा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सो यू कैन राइट हैगिंग इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भी गेन और लॉस, उसके लिए देखते हैं पहले व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच कंपनी इन शेयर्स ऑफ एस कंपनी। ये आपको बैलेंस शीट में भी दी है, एच की बैलेंस शीट में है इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट 1,70,000। फिर आपको देखते हैं व्हाट इज एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जिसे जो एज ऑन एक्विजिशन डेट। इसमें देखो हम दो चीज़ें लेंगे, शेयर कैपिटल विच इज 120, एक्स्ट्रा शेयर कितना है शेयर कैपिटल में, जिसे जो 120, एंड व्हाट इज एच शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स, जिसे 60,000। तो एच की जो इक्विटी बन रही है जिसे जो 1,80,000, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की लेस, तो इट मीन्स एच को गेन हो रहा है, डिफरेंस है जो कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज कमिंग 10,000, विच इज एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी आपकी। अगेन वी आर शोइंग कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें आपको लेना है व्हाट इज शेयर कैपिटल हेल्ड बाय माइनॉरिटी एंड कैपिटल प्रॉफिट्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी। शेयर कैपिटल है 80,000 एंड 40,000, तो ये आप टोटल करके हैं तो 120, जिसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन एक्विजिशन डेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन एक्विजिशन। फिर इसमें आप ऐड कर दीजिए उसका शेयर कितना है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में, ये आपका बन जाएगा टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, इसमें बाय ईयर एंड। जो रेवेन्यू प्रॉफिट में शेयर है 8,000, तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे जो
माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, तो जिस डेट को आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं। फिर आपको कैलकुलेट करना है कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, कंसोलिडेटेड P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसमें आपको देखना है एक्स्ट्रा कितना बैलेंस है P&L में। आप लोगों को एक्टिव बैलेंस शीट से मिलेगा, उसका P&L है 1,60,000, तो 160 और प्लस जो एक्स्ट्रा शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में 12,000, जिसे टोटल कंसोलिडेटेड P&L 172,000। अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो लेट अस शो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस, जिसे ये एज ऑन 31 मार्च 2023। फाइनल कॉलम है आपका अमाउंट इन रुपीज, तो एक कॉलम आप डिटेल से लेकर रख सकते हैं। तो फर्स्ट हम शो कर रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो फर्स्ट हेडिंग लीजिए शेयर होल्डर फंड्स, इसमें हम शो करेंगे होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल लीजिए 5 लाख रुपीज। सो फर्स्ट वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसे यू 5 लाख, इसको डिटेल से कॉलम में शो करके हैं। देन वी हैव जनरल रिजर्व, तो जैसे यू एज ऑन दिस डेट ऑफ होल्डिंग कंपनी ओनली। फिर आप शो कीजिए जनरल रिजर्व, ये सिर्फ होल्डिंग कंपनी आपको शो करना है, जिसे गिवन 1,30,000। फिर आपने कैलकुलेट किया है कंसोलिडेटेड P&L, so this we have calculated 1,72,000। जैसे गुडविल कैप्चर रिजर्व, तो इस केस में आ रहा है कैपिटल रिजर्व, वो भी आप शो कर लीजिए शेयर होल्डर फंड्स में, जिस आ के 10,000, जिसे कि टोटल शेयर होल्डर फंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी आफ्टर कंबाइनिंग विद सब्सिडरी, तो जिसे 630 प्लस 172 प्लस 10 812। फिर आपको सेपरेटली शो करना है सेकंड आइटम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया था जिस बार 1,28,000। फिर कुछ लोन्स नहीं है, देन वी हैव ओनली सैलरी क्रेडिटर्स, इट मीन जैसे थर्ड आइटम करंट लायबिलिटीज, इसमें आप शो कीजिए क्रेडिटर से। ये हम दोनों से शो करेंगे ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। तो एक्स्ट्रा क्रेडिटर्स हैं 1 लाख और सब्सिडरी के हैं 75,000। टोटल आप शो कर लीजिए आउटर कॉलम में 175, यानी पेजेस टोटल। सो 812 प्लस 128 प्लस 175, जिसे 11,15,000। देन वी हैव एसेट साइड, उसमें देखो फर्स्ट आती है नॉन करंट एसेट्स, इसमें आपको मेंशन की है, एक तो आपको गुडविल मेंशन की है HRS कंपनी की, तो इसको आप शो कर लीजिए। सो गुडविल H&S आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। सो दिस टोटल इज कमिंग 30 प्लस 20,000, सो दिस इज 50,000, ब्रैकेट में लिख दीजिए जिसे 30 प्लस 20,000। तो स्पेस कम है, मैंने फुल अमाउंट में लिखा है शॉर्ट में। यानी कि जो मशीनरी आपको ली है सिर्फ H कंपनी की 2,50,000। फिर आपको एक फर्नीचर लिया है ऑफ H&S 85 एंड 50, तो दोनों को ऐड कर लीजिए 85 प्लस 50 135। अगर भाई आप ऐसे शो कर देते हैं H का है 85, S का है 50, फिर ऐड हो जाएंगे। स्पेस कम है इसलिए मैंने कंबाइन कर लिया। देन देयर इज नो गुडविल, कोई गुडविल नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स हैं एच पी बुक्स में, वो अपीयर नहीं होंगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो जिसे जो टोटल नॉन करंट एसेट्स 435। तो देन वी हैव सेकंड हेडिंग करंट एसेट्स, ये भी आपको कंबाइन करनी है, दोनों की स्टॉक हैं, डेटर्स हैं, कैश है। सो फर्स्ट वी हैव स्टॉक, डेटर्स से यानी कि ये कैश, देखो स्टॉक आपको मेंशन किया है 210 प्लस 230, डेटर्स हैं 65 प्लस 58, कैश इज 80 प्लस 37, जिसे जो 440, यानी कि 65 प्लस 58 123, 80 प्लस 37 117। तो टोटल इज कमिंग 6,80,000, यानी कि इट इज टोटल
This is total is coming 11 lakh 15 होंगी। तो किसी जगह कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन केस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो हमने एक सिंप्लीफाइड मेथड डिस्कस किया टू कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड calculation of cost of control and at share in revenue profits by preparing statement of distribution of subsidiary company. So this is quite easy method, you can do it properly. तो फर्दर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।